Hi. Hello, this is Piyush. पता है, आईआईटी जाना सबका एक सपना होता है जो आज की डेट में किसी नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, बीटेक कर रहा है, राइट? और अगर आईआईटी नहीं जा पाए तो हर किसी का सपना होता है कि वहाँ के किसी लोग से मेरी बातचीत हो जिससे कि मुझे एक्चुअल पता चले कि वहाँ पे क्या सीन है और जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे क्या सीन है, ताकि जब डिफरेंस पता होगा तभी हम अपने आप को सही एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे साथ में जो लोग हैं अलग अलग जगह पे वो क्या क्या कर रहे हैं। बट सैडली हमें इतनी जल्दी ऐसे लोग मिलते नहीं हैं जो हमें रियलिटी बता पाए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके लिए शायद मैंने सोचा भी नहीं था, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। यू माइट बी वंडरिंग कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गेस्ट लाया है हमारे इस चैनल पे, इसके बारे में मैं इतना एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ दे दूँ हमारे गेस्ट के बारे में। ही इज़ नन अदर दैन ऑल इंडिया रैंक 52 होल्डर in GATE examination, who has done his masters from IIT Kharagpur in computer science stream. It is very easier to say that okay, like his rank was 52, but only he knows about it, that how he achieved his rank, the 52 rank. And he is currently working in a big MNC at Mumbai, and he is Saurav Mishra. So I think it's a very special video to each and everyone who is going to watch it. भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, फ्रॉम बीटेक फर्स्ट ईयर टू एमटेक फाइनल ईयर इन आईआईटी खड़गपुर। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड इट्स अ काइंड सजेशन that if you really want to fetch out something good from this video, please watch it till the end. I would definitely try to add timestamps to the video so that it will be easier to jump to the sections that you wish to watch. Do comment your favorite part or the thing that you liked the most about the video. Hoping for your positive responses. Thank you so much. All right, so और भैया, how is life going? Hey, hello, Piyush, and first of all, I'm very sorry for delaying this interview for a very long time. I was busy with some other commitments. So yeah, life is going very good. And Great. I hope this with you too. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपके अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे छोटे से चैनल के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मीन्स अ लॉट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज व्यूअर्स मेन मुद्दे के लिए आए होंगे, तो लेट्स जंप टू द पॉइंट कि आप अपने थोड़ा स्कूल टाइम के बारे में बताओ कि हाउ वाज योर स्कूल लाइफ, आप कैसे थे स्कूल में? Okay, so me during school, so यार मैं तो ठीक है, I was like a kind of average and बदमाश guy. Like I enjoyed my childhood. मजा आता था. I became serious with academics in my 10th standard because बचपन से ही बोल रहे थे कि 10th is something which you have to take it very seriously. Before that I was very calm, chill, मस्तीखोर. Like मेरी बहुत कंप्लेन आती थी. Before each and every open house I used to pray to God कि आज मारना पड़े. Okay, all right, something similar to mine, but never mind. All right, तो आपके स्कूल में जैसे 10th में कितने परसेंटेज आए थे और 12th में कितने थे? Like how was your percentage graph? See, I won't tell you the percentage. They are visible on my LinkedIn. Okay. And the fact about me is each and every school or college I visited, whether it's my 10th, 12th, BTech or MTech from IIT, I was topper in all of them. So you can now understand. All right, got it. So हाँ, आपने like how did you come to know about the JEE, and did you appear for JEE or you directly appeared for GATE and then you went in IIT? Yeah, देखो, see, yeah, this is a very good question. And see, JEE, like I was not serious kind of student till my standard 10th, so I didn't know much about these things like JEE, GATE and everything. In 10th standard, like okay, so बचपन से इंजीनियर बनना था ना, I wanted to be an engineer. और क्या इंजीनियर की स्पेलिंग क्या होती है वो नहीं पता था, but I used to find it good. Like okay, I come from a technical background. पापा भी मेरे technical background से, तो I found it fascinating. Okay. Then when I entered 11th standard, till then I was also in an illusion. In 12th standard I realized that no university or college gives admission via boards के marks, and 12th is pretty, like 12th is important, but for engineering admission it's pretty useless. So in 12th I realized it. So I came to know about JEE later, and I gave it too. I gave one attempt with my
in my 12th standard, and one with my engineering. I qualified, but I was not getting a decent branch. So I was like, no, I want to be stuck with computer science because I was told by someone that branch is very important. If you go into some other branch, then you need to आपको multiple नाव पे पैर रखनी पड़ेगी. CSE ले लो, then you can whatever you will study, that will prepare you for placements too. So I was very biased towards CSE. मेरा एक ही था कि ठीक है, I will take CSE. That's it. All right. All right. So so basically जब आपने फिर बीटेक में अपना एडमिशन कहाँ लिया, मुंबई में ही, लाइक महाराष्ट्र में? Yeah, तो बीटेक में okay, so I was advised कि take if you are not getting IITs or NITs, like specifically you are not getting top IITs or top NITs, like take the best in your hometown. So I took that. Fair enough. And also one more fact, people think that we didn't got anything from JEE preparation, but who all have prepared for JEE, that actually makes you well equipped to face what's in engineering and what's after that. So what I think, if you have ever prepared for JEE sincerely, that actually prepares you well. वो आपको बहुत अच्छा prepare कर देगा. Like आपका analytical mind एक तरीके से उसको दिमाग को चलना आ जाएगा. You will get some idea how to solve problems. So preparing for JEE is actually necessary. And ऐसा नहीं कि even if you pass or even if you fail, that actually makes you grow. All right. Basically, preparation is something that teaches you a lot. Yes. More than the result. Results से ज़्यादा preparation is important. Agreed. So okay. So how was your first semester of engineering? Like, because that was that might have been the new phase of BTech, pursuing engineering. Especially in your case, you were very much fascinated towards the technical things since your childhood, right? So how was your first semester? Yeah, so the thing is, a fun fact about me. So like engineering करने में the major okay, so I wanted to be an engineer from my childhood, but Three Idiots का भी बहुत अच्छा वो था कि impact था कि यार ये movie देखा था तो यार engineers are cool. अच्छा, और मेरे भाई ने MBBS का preparation किया मुन्ना भाई MBBS देख के, like यार so like things are there. But when I entered into the first lecture of my engineering, so the professor came and told कि ठीक है, we will teach you, but you will try but you should try to be to be curious. आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि अगर लाइन का वायर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, एथरनेट केबल ऐसा क्यों है. So I was very happy. I was actually smiling in my very first class of engineering. मैं बहुत खुश था कि यार कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे, और actually जो भी पढ़ेंगे that I can use and apply into real world and get stuff done. So I was very happy. I was very excited to learn new things. And जैसे होता है इंजीनियरिंग में बच्चा clueless होता है, I was clueless too. फिर कुछ कहते थे bro come into this committee, वरना आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या डालेंगे, एकेडमिक्स तो सब करते. I was very confused कि क्या करूँ, ये सोसाइटी जाऊं या वो सोसाइटी जाऊं, ये करूं या वो करूं. एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई कहता था CGPA इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कहता था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कहता था वो इंपॉर्टेंट है. तो देन that was a difficult part. First semester is actually a difficult semester. But the thing about a guy who is in first semester and a guy who is in fourth semester is that first semester wala is curious. Agreed. And if treated that curiosity very well, if guided that curiosity, that can actually change the career path. Right. Which most of the engineering colleges fails to do. Yes. So I was very lucky with that. So my professor saw my curiosity. So I used to ask very random questions. Semicolon क्यों डाला last में? Why there is a need of semicolon? Why can't we put a full stop? Why we need to actually put a semicolon? So like they used to entertain my queries and my curiosities. So उससे like I got a push to deep dive into things. And आपको कोई भी चीज अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आप दिन भर हथियार नहीं जमा करते रहोगे, दिन भर आप बुक्स नहीं जमा करते रहोगे. You should just deep dive. Agreed. Right.
So that curious guy was in the first year was actually driven by the curiosity, और professors ने थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा help किया curiosity. Agreed. Okay. All right. So, Bhaiya, next I would love to, know your opinion on this thing, that what do you think about friend circle and any particular message that you would like to give to the first year or fresher student? Because, there is a lot of chances that they might get, distracted, or, they might catch different path. So, like, what is your opinion on this thing? Okay, so yeah, friend circle matters a lot, but we are not living in 1980s, 1990s or 2010. कि कॉलेज में ही फ्रेंड सर्कल मैटर करता है. अगर if you are not finding good people, or if you are not finding like-minded people, it's fine. You should search for them on some other platforms or some other places. The keyword is networking. Right. The better you are, like the better friend circle you have as a newbie, as a rookie, like if you are just starting your engineering journey, if you are matured enough, 25, 26, you actually are smart enough to understand what's good or bad. But if you are very young, there are chances कि आप गलत चीजों में पढ़ सकते हो. So if you are very young, try to get a very good friend circle. The friend circle should be supportive, and the friend circle should see, अगर आपके friends है ना, and if they are not that much brilliant, not that much studious, ऐसा नहीं कि topper होना जरूरी है, but they are helpful in nature, that is also fine. And what I suggest कि आप जैसे आजकल LinkedIn है and all these things are there, you should connect with people. आप connect करो, बात भी नहीं करते, just see their journey, what they have been through, like वो कहाँ से क्या जा रहे हैं. Like there are many things which I was not aware of, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर काश LinkedIn पे अगर मैं स्टॉक भी करता लोगों को, तो that would have actually would have helped me in like doing things better. So networking is important. थोड़े ही friends रखो, but they should be good people. They should not encourage you towards something bad. आपका loss ना कराए. And try to observe people जो अच्छे आपके कॉलेज के alumni हैं, who are doing good. Your seniors, good or bad, whatever, how, like कैसे भी, बुरे भी हैं और अच्छे भी. Observe them. बुरे हैं तो क्या मिस्टेक किया, अच्छे हैं तो क्या अच्छा किया. And also connect with people over LinkedIn. आपको पता चलेगा. जैसे GSOC है एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, और बहुत सारी चीजें जो आपको रियलाइज होगी कि अच्छा ये भी होता है, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देम. तो दैट विल हेल्प यू. आपकी जर्नी, you are not very first engineer in India. There are many engineers who have traveled your path. So True. You can just trace their footprints and do well. Got it. All right. So this was very valuable, I guess. जो भी first year freshers के बच्चे देख रहे हैं, I think this is something which will be very much important for your one more thing. BTech. Even if you don't want to do engineering, start practicing aptitude from the first year. All right. Aptitude. Aptitude, yes, that will land you somewhere. Okay. So yes, please note this these 2 points. All right, that would definitely help you out. All right. So one more very important question, and I think the last question for the BTech student, that there is this misconception, or there is this confusion, or there is this misclarity of the fact that CGPA matters a lot. Someone says CGPA matters a lot, or somebody says that there is nothing to do with CGPA. All you need is to gain skills and all. So what is the actual reality? Because you have been through the path, you are currently doing a high-paying job, so you know it very well, right? So would you like to put some light on this confusion? It depends on how your CGPA is getting calculated or evaluated. When I talk about IITs, getting a good CGPA at IITs is tough. Here placements are directly proportional to CGPAs. तो डिपेंड्स कि आपका CGPA कैसा कैलकुलेट होता है. तो जैसे IITs होगा, यहाँ पर CGPA लाना टफ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली पता है रिक्रूटर्स को, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि दिस इज केक वॉक हियर टू गेट लाइक टू गेट अ गुड CGPA. तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स. बट कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है कि लाइक मैं नाम दे दूंगा, बट जनरली कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वहां पर यू गो देयर एंड यू जस्ट फिल द पेपर्स and you get a good CGPA. True. My point is, first understand
why CGPA is important. People assume if you need to filter application on basis of potential, a CGPA indicates, generally there is an assumption that a good CGPA indicates that ठीक है he or she have like उसने मेहनत की होगी अपने बैचलर्स में. तो इफ यू हैव जस्ट आप एग्जाम के एक दिन पहले आंसर भर के आ गए हो कॉपी में, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो इंटरव्यूअर को 9.5 सीजीपीए के हिसाब से एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम्हारी नॉलेज वैसी होगी. बट Right. बट यू आर ब्लैंक, यू आर एम्प्टी. So that will not take you that will not take you anywhere. So a good CGPA without any knowledge will not take you anywhere. Ulta, that is a drawback, I guess. Yes, there is a drawback. So, Because you will kill the expectation. yes. So but I say CGPA is important, but learning उससे ज्यादा important. अब कुछ आ जाते हैं जिनका CGPA बहुत कम होता है, तो वो बोलते हैं कि नो CGPA डजंट मैटर. भाई तुम कैंपस प्लेसमेंट नहीं बैठ पाओगे. Right. तुमको कैट देने जाओगे तो तुम्हारा बैचलर्स में 6 का स्कोर आ जाएगा, तो दैट विल हार्म यू. ठीक है, तो CGPA इज इम्पोर्टेंट इफ यू हैव नॉलेज बैकिंग योर CGPA. अगर Right. आपने अच्छे से पढ़ाई की है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो दैट विल हेल्प यू. तो जनरली ऐसे होता है कि जो बहुत अच्छी जगह पे होता है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, स्टैटिस्टिक्स में एक्सेप्शंस को नॉइज बोल के निकाल दिया जाता है, बट जनरली जो अच्छी जगह पे होते हैं उनका CGPA भी डिसेंट होता है, 8.5 8 9 ऐसे होता है. तो यू शुड हैव अ गुड बैकिंग टू योर नॉलेज, तो आपका CGPA प्लस पॉइंट ऐड करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 9 CGPA और आप बहुत अच्छा आंसर देते हो, बहुत अच्छी चीजों को सॉल्व कर रहे हो, तो इंटरव्यू पर भी इंप्रेस होता है कि भाई इसने पढ़ाई की है. तो like CGPA matters if you have good knowledge backing it. Also knowledge नहीं है तो भी CGPA कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत मैटर करता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट मैटर्स, ऑल्सो प्लेसमेंट में भी मैटर करता है, और IIT में भी मैटर करता है CGPA. तो इट शुड नॉट बी वेरी लो, बट कुछ भी करके मतलब रट्टे मार के इट शुडंट बी हाई. इट शुड बी दैट मच कि भाई ठीक है अच्छा है एंड आई can back it with my knowledge. Right. There should be a balance, I guess. Yes. All right. So this was, I think, enough for the BTech students. So now, अभी हम आएंगे गेट के ऊपर, जो मेजर चीज जिसके लिए पूरी ऑडियंस आई गेस वेट कर रही है. सो सबसे पहले भैया बताइए कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द गेट एग्जाम, एंड when did you start your preparation, like be it first year, be it second year, be it third year, and what was the main purpose of the exam? Because when it comes to GATE, there are two ways: either you are willing to pursue masters from IITs, right, or you are willing to join PSUs, like in some cases ISRO, BARC, ISRO and BARC. So what was the main purpose of yours giving this examination? So yes. Okay, so yeah, so let me answer this question. So these are pre-gate question. Okay, like first of all, your motivation is very much important in whatever you do. If you are not motivated enough, you won't be getting up from the bed. So how I came to know about this exam? So okay, so let me give you an answer. So what used to happen when there was a topic, when there was any topic in my BTech, like for example, अगर प्रोफेसर कुछ भी टॉपिक टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है during my BTech, so I used to understand very well. And then I used to make notes, and then I used to go to home and मैं देखता था कि ठीक है PYQ में क्या पूछा. यूनिवर्सिटीज में तो PYQs इजी होते थे, तो ऐसे ही चुल मस्ती थी. तो आई यूज टू लाइक इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली कोर CSE में. तो आई यूज टू गो एंड कुछ वेबसाइट जैसे गेट ओवरफ्लो हो गए एंड Geeks for Geeks हो गए एंड IITs के असाइनमेंट्स हो गए. आई यूज टू सॉल्व देम क्योंकि इंटरेस्ट आता था. तो जब मैं सॉल्व करता था, जो हो जाते थे यार, इट यूज्ड टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, और जो नहीं होते थे आई यूज्ड टू गो टू माय प्रोफेसर एंड आस्क कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा आपके बताए तरीके से. तो फिर वो बताते थे कि नहीं इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है. फिर वो बोलते थे कि ये पार्ट नहीं है करिकुलम का. तो आई यूज्ड टू से नो, मुझे जानना है. तो वो हेल्प करते थे. तो फिर वो बोलते थे कि आप रेफरेंस बुक से पढ़िए, ये रेफरेंस बुक है, ये इससे पढ़िए, ये सेमेस्टर वाली बुक से मत पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए. तो लाइक देयर वाज अ क्यूरियोसिटी इन मी. ऐसे ही करता था हर चीज के पहले आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो लाइक वन डे माय प्रोफेसर टोल्ड मी कि
like why see you are solving problem और ये जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो आईआईटीज के सबके these comes in gate. So why don't you give exam why don't you give gate exam? तो I was like see जेई से तो कॉन्फिडेंस टूट गया था. तो I was like कि यार एक तो वो जेई था 3 सब्जेक्ट वाला, ठीक है, एक गेट है इसमें पूरा इंजीनियरिंग आता है 2 साल. हाँ 2 साल नहीं और आता है भाई क्योंकि कैलकुलस भी है वो भी है. तो यार पूरा इंजीनियरिंग है इसमें यार. और फिर वो रैट रेस और अभी प्लेसमेंट भी है, कहाँ कहाँ फोकस करे. तो मैं तो नहीं प्रिपेयर कर रहा लेकिन एक पता चल गया उसके बारे में. frankly there were no guys from my college used to clear this exam. ज्यादा लोग नहीं थे तो मुझे लग रहा है कि ये तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन ऐसा नहीं है कि विल पावर के आगे कुछ भी बड़ा है. बट एक डर था और कोई था भी नहीं जिसने क्लियर किया हो. एंड ऑल्सो लाइक वन डे लाइक देयर वाज अ हर कॉलेज में अच्छे भी प्रोफेसर होते हैं बुरे भी होते हैं. देयर वाज अ प्रोफेसर एंड देयर वाज सम हायर एजुकेशन सेमिनार. तो वहाँ गेट के प्रोफेसर आए थे तब कोचिंग के एंड दे वर टॉकिंग अबाउट. तो हमें जाना था उस सेमिनार में. तो द सीट्स वर फुल. तो वी वर लाइक यार सर थोड़ा जगह हो तो बताओ कुछ. तो प्रोफेसर ने बोला नहीं नहीं जगह नहीं है. एंड देन व्हेन वी लेफ्ट तो दैट प्रोफेसर टोल्ड कि अगर इन सब लोग का गेट में होना होता तो यही उस कॉलेज में आते. अच्छा. आई वाज लाइक बात तो सही है. तो I came to know about gate from there. I was not sure that I will prepare. All right. And but honestly, the way I used to study, basically curiosity, solving problems, and हाँ जैसे I used to, for example, there is a problem, तो उसका solution मिल गया तो I used to get very happy and I used to go on gate over को solution देखता था यार it is right. But then I used to study the discussions and I used to read the discussion. other दूसरे के opinion देखता था. I used to get fascinated यार कि यार इनका तो विजन ही अलग है, इनका तो अलग विजुअलाइजेशन है चीजों का. So that actually helped me to understand topics well. Even though I was not dedicatedly preparing for GATE, I was actually somehow, because I prepared well in my BTech, I was getting ready. You were kind of apparently preparing for GATE, right? Yes. Not explicitly, बट वही है ना कि जैसे मैंने कहा कि सीजीपीए को बैक करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए. तो वो नॉलेज ही थी कि जो मुझे गेट के लिए पुश कर गया कि ठीक है गेट हो गया. और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई रियलाइज कि यार माय बीटेक वाज द रीजन आई क्लियर्ड गेट. प्री गेट नाउ कमिंग टू सी आई डिडंट वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट क्योंकि यार डर लगता था कि ठीक है दिस एग्जाम इज टफ एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेम 7 आईआईटीज जो जे एडवांस करते हैं एंड एवरीथिंग. तो आई वाज इनटू कैट. अच्छा. हाँ बट ड्यूरिंग so what happened, like there was some issues, so I didn't even appear for any of them in my final year. And then I joined job, and during job I used to think कि मैं तो MBA करूँगा. But the more I started working, the more I realized कि I am a technical person and technical problem solving is suitable for me. And if you're good at something, use it to earn. Right. तो मैंने सोचा कि यार why I want to deviate to management if I'm good at technical. I आत्मचिंतन किया जॉब में 6 महीने. Then I realized no, गेट कैसा भी हो लेकिन I'm good at it ना, let's give it a shot. Right. So I filled the form. But वही था कि confusion क्या करे, गेट कैट MBA MTech क्या करना है. उसमें भी गेट के बाद क्या करना है, जॉब जाना है कि एमटेक जाना है, वो भी तो कंफ्यूजन है. क्योंकि पीएसयू है, गवर्नमेंट जॉब है. तो उसमें आई वाज लाइक फॉर्म भर देते हैं, लेट्स सी देना है कि नहीं. देन आई रियलाइज कि आई एम गुड एट टेक्निकल थिंग्स, आई कैन सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड टेक्निकल लैंग्वेज, तो आई शुड एक्सप्लोर मोर इन इट. ओके. और इसमें ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर गेट आई रियलाइज कि यार इसमें इतना मजा आ रहा है तो आगे पढ़ के कैसा मजा आएगा. तो आई वाज लाइक ठीक है, स्कोर 3 साल चलता है, फर्स्ट डू एन एमटेक, पहले लर्निंग कर लेते हैं बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न. और
उस प्रिपरेशन में भी आई रियलाइज कि लर्निंग एक बहुत की फैक्टर है. तो माय मेन फोकस बिकेम टू गो टू लर्न like to learn in my master's from a very good college and to learn something like that can actually have an impact. So this is how like I gave GATE and फिर उसके बाद I chose MTech. Maybe I was very I didn't had any confusion. जॉब में I realized कि मुझे AI में ही जाना है एंड AI में ही जाना है, AI में ही काम करना है. तो दैट जॉब ड्यूरेशन 2 साल का गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है. मुझे गेट देना है, मैं MBA नहीं करना है, मुझे गेट देना है, मुझे MTech करना है और मुझे आगे की मेरे करियर में AI में काम करना है. बिकॉज आई फाउंड इट फैसिनेटिंग और क्लियर हो गया कि ठीक है, हाँ इसमें यू कैन डू वेल. तो दैट गिव मी क्लैरिटी. तो अगर आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जॉब करे या क्या करे, गो विद द फ्लो. गो विद द फ्लो. जो भी जॉब लगती है ले लो. वो 25,000 रुपए महीने की लगती है, ले लो. वो आपको क्लैरिटी देगी. आप अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपनी जॉब से, तब तो आप बिल्कुल आगे मास्टर्स मत करना इंजीनियरिंग में, आप MBA कर लो. अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे स्किल्स है, तो आप सीधा स्विच करके भी कर सकते हो, या तो यू कैन डू एन MTech. तो Right. वो 2 साल की जॉब एक्चुअली गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. All right, Bhaiya. So now let's jump to the preparation thing. That how did you prepare for GATE? Because that is what very important. And there are a lot of questions in this section. That is like should we go for coaching, offline coaching, or should we go for online coaching, right? Or should we do self study without any coaching guide, or okay. And then after, like, okay, once you chose anything, then how to revise properly, how to make sure that you don't forget what you read, right? Because ऐसा होता है ना कि आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं. तो वो चीज कैसे करें इसमें? Okay, so Like overall preparation strategy I want you to. Yeah, so I will break this and answering your each and every question. I will just say कि मैं ये answer कर रहा हूँ, so that viewers can also be sure कि ठीक है हमारा question answer हुआ है. So first of all, like जब मैंने form भरा ना during my job, तो when I got clear किया नवंबर में कि यार अब तो गेट का फॉर्म भर दिया और मुझे गेट ही देना है, तो I started revising. बीटेक में जो पढ़ा था वही. All right. अब कुछ चीजें याद थी, कुछ चीजें नहीं थी, तो आई डिवाइडेड कि ठीक है ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट वीक है. गेट की एक बहुत अच्छी बात है कि उसका ब्रेथ, मतलब कि उसमें सब्जेक्ट ज्यादा है. तो ये अच्छी बात भी है या बुरी बात भी है? बुरी बात है कि सब्जेक्ट ज्यादा है, अच्छी बात है कि सब्जेक्ट ज्यादा है. बुरी बात ये है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, अच्छी बात ये है कि थोड़ा बहुत छोड़ दोगे तो भी चलेगा. तो आई लेफ्ट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट जो मुझे आते थे, जो मैंने पढ़े थे, आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चन. टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चालू कर दिया, प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, PYQ करना चालू कर दिया. आई मेड मिस्टेक्स, आई मेड हेल अ लॉट ऑफ मिस्टेक. एंड देन मैं दूसरों के देखता था आंसर्स कि यार इसने कैसे किया, इसने कैसे किया. गेटवे फ्लो पे डिस्कशंस देखता था, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखता था. देन आई स्टिल लर्न कि दूसरों का अप्रोच क्या है, मेरे अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है, मेरे अप्रोच से सॉल्व क्यों नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीजन. बाय तो ये डीबग करते करते, सी कंप्यूटर साइंस इज प्योर लॉजिक. इट इज नॉट समथिंग कि इसमें एक्सेप्शन है या इसमें रट्टा है. तो इफ यू हैव समथिंग इन माइंड, इफ यू हैव अ सॉल्यूशन एंड इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. तो आई गॉट, जैसे कुछ मेरे सॉल्यूशन से आंसर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, देन आई यूज्ड टू लर्न समथिंग न्यू. और कोई क्वेश्चन पूरा ही नहीं आ रहा है तो उसने कैसे सॉल्व किया, डिस्कशंस क्या हैं ऑन एवरीथिंग. कोई फॉर्मूला, कोई रट्टा नहीं मारना. ठीक है, ये फॉर्मूला है, कैसे आया, मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरी नॉलेज है, हाउ कैन आई अराइव टू द सेम कंक्लूजन विदाउट यूजिंग सम क्या कहते हैं कि फॉर्मूला which I don't even know existed before today. So I solved hell a lot of problems. Test series मिली, फिर like I solved a lot of tests. I actually like practiced a lot of PYQs. बहुत सारी बुक्स भी सॉल्व किया. I used to solve a lot. क्योंकि क्या होता है, ये ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, so I used to get some time. So I solved and then I appeared for GATE. The paper was very tough. Now the thing with tough paper is that none of your competitions will be going to attempt the full paper. Right. So you can attempt questions and get a good marks. And get a good mark.
बट अगर पेपर इजी है तो आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है. तो पेपर केम टफ 2022 का, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर. मुझे बहुत टाइम मिल गया एग्जाम हॉल में. आई वाज लाइक ये तो आ ही नहीं रहा है, इतना टफ होता है गेट, आज के बाद दूंगा ही नहीं. बहुत एक तो ऐसे भी कॉन्फिडेंस खत्म था. देन एक क्वेश्चन पकड़ लिया, उस पर सोचने लगा, ओके ऐसे नहीं ऐसे ऐसे. एमएसक्यूज आ गए थे उस टाइम. तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग. बाहर आया तो आई डिडंट स्कोर वेल, आई स्कोर्ड ओनली 51.33, बट रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में. हाँ, बट रैंक वाज 605. देन आई रियलाइज कि ओके आई सॉल्व प्रॉब्लम. पेपर टफ था तो लोगों से उतने भी क्वेश्चन नहीं हुए. बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो नहीं पढ़े थे, बट माय बेसिक्स वर क्लियर एंड थिंकिंग का वो था कि ठीक है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो आई बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए, लेकिन जो गलत भी हुए ना वो एक एंड तक आके गलत हुए. तो आई रियलाइज कि नहीं, ये जिस तरीके से द सॉल्विंग अप्रोच आपका हाथ बैठ जाता है. जैसे टेस्ट सीरीज देते से आई रियलाइज्ड कि एप्टीट्यूड शुड बी स्टार्टिंग पहले 10 मिनट से ज्यादा आई वोंट गिव टाइम टू एप्टीट्यूड, बिकॉज 10 मिनट से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पे मैं टिक गया और वो क्वेश्चन को मैंने ईगो पे ले लिया, तो अगर उसमें 5 मिनट 10 मिनट लग गया और वो मेरा समय खा लेता है, तो बाकी क्वेश्चंस का टाइम जा सकता है. डोंट टेक एनी क्वेश्चन टू एप्टीट्यूड. दिमाग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता है मेरा, तो आई विल फर्स्ट अटेम्प्ट एप्टीट्यूड. व्हाटएवर आई एम सेइंग सजेस्ट दैट प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर तुम लाख पढ़ लो, बट if you don't have a paper attempting strategy, अगर तुम लाख वीडियोस देख लो गन चलाने के, बट अगर तुमने चलाई नहीं है तो you won't be able to. ठीक है, आप एक्टिवा चलाना, साइकिल चलाना आप वीडियो से नहीं सीखते, यू नीड टू गेट इट डन. तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. बहुत स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है. पहले 10 से 20 मिनट में एप्टीट्यूड खत्म करना है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लीव इट. लास्ट में अगर बच जाएगा टाइम तो वी विल डू इट. कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना. पेपर पासेस में करना है. जैसे कि पहले इजी क्वेश्चन करो, टफ क्वेश्चन है जाने दो, बाद में देखेंगे. जब सारे इजी क्वेश्चन हो गए, देन क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लो कि ये लेंदी है लेकिन ये हो जाएगा, ये टफ है पता नहीं होना हो, तो उसके बाद लेंदी क्वेश्चंस करो, देन गो टू टफ क्वेश्चन. पेपर इज नॉट अबाउट ईगो, पेपर इज अबाउट attempting questions and maximizing. like paper is knapsack. करने कोई ईगो से नहीं बोलेगा मैंने टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, भाई तेरे 4 ही नंबर आए. सही बात. टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ मतलब नहीं है. राइट. एवरीथिंग what goes well in your examination depends a lot how you have practice. वो डे पे भी डिपेंड होता है, बट प्रैक्टिस पे भी होता है. Now coming to coaching. See, my first attempt was without coaching. You can clear gate without coaching, but that requires some extra effort. आप नेप्टेल से पढ़ सकते हैं, स्वयं एनपीटीईएल से पढ़ सकते हैं, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. यू कैन क्लियर गेट, बट हो सकता है कि आप फिगर आउट नहीं कर पाए कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर मी. सो इफ यू आर लाइक if you can understand this is good and this is bad for for studies and for preparation, you can you can prepare without coaching as well, not an issue. but अगर आपको एक मेंटर चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए कि ये करना है, तो take some coaching. like after my first attempt I realized कि यार पेपर में बहुत कुछ नहीं आता है. पेपर टफ आया था तो जो मैं पढ़ के गया था उसमें मैंने फोड़ दिया. लेकिन अगर पेपर इजी आया तो आई नीड टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस, और मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ. तो अगर इजी पेपर आता है तो जो मुझे नहीं आता है वो भी मुझे आना पड़ेगा. तो आई रियलाइज कि ठीक है कोचिंग लेते हैं. आई एम वेरी एंटी कोचिंग पर्सन, बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्रीज का एवरीवन नोस कि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट योर मार्क्स एंड एवरीथिंग. उनको पैसा मिल गया बस बहुत है. एट द एंड दे विल से कि यार तुमने पढ़ाई नहीं किया था. राइट. तो बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उनको ब्लेम गेम हो जाता है. सी इट इज लाइक अ गैम्बल यार. कोचिंग लगा देना सक्सेस गारंटी नहीं है. और उसमें फिर कोचिंग भी ऐसा है कि अगर आप ब्लाइंडली फॉलो, बच्चे सोचते हैं कि मैं ब्लाइंडली फॉलो, यार कोचिंग उससे नहीं लगाया जिसको किसी गाइडेंस की जरूरत है. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन जो कह रहा है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, टू फिगर आउट कि उसका प्रोफेसर सही पढ़ा रहा है या नहीं. लगेगा ही कि यार मेरा प्रोफेसर सही पढ़ा रहा है, बट एट द एंड उसको सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज रटवा दिए बेचारे को बस, एंड ही इज सेइंग कि मेरा प्रोफेसर तो गॉड है.
राइट। गॉड ऑफ ये गॉड ऑफ वो, बाद में पता चला कि यार उसके प्रोफेसर ने तो उसको बेवकूफ बनाया। तो कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक गुड कोचिंग इंपॉर्टेंट है। आप फिगर आउट, मतलब आपको एक मेंटर चाहिए, तब तो आपका कोचिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो आई वॉज वेरी एंटी कोचिंग, यार अच्छा हो या ना हो पैसे डूब जाएंगे। देन व्हाट हैपेंड, लाइक गेट ओवरफ्लो पे आई यूज्ड टू रीड आंसर्स ऑफ सम पीपल। शेख मस्तान हो गए, दीपक पुनिया हो गए, सचिन मित्तल हो गए। तो ये सब के आंसर देख के लगता है यार ठीक है, अच्छे बंदे आईआईएससी से हैं, अच्छा नॉलेज है इनका। देन वन डे गेट 22 के रिजल्ट के टाइम वी वर डिबेटिंग ऑन अ क्वेश्चन, और यार स्टैक का क्वेश्चन था, कुछ था। सचिन मित्तल ने बोला इसका आंसर तो जीरो है। मैंने बोला कैसे? आई वाज शॉक्ड कि उनके मेथड देख के आई रियलाइज नो दे आर करेक्ट, दैट आल्सो इम्प्रेस्ड मी। देन क्वेश्चन पे डिबेट चल रही थी, एंड आई लाइक कि यार वो क्वेश्चन को प्रोपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट करके दे स्टार्टेड लाइक टॉकिंग। तो मैंने बोला ये बंदा है कौन, ये बंदा तो सही है, प्रिपरेशन में इसके अराउंड टू गेट लाइक कुछ होगा तो इसको पूछूंगा। देन आई केम टू नो अबाउट गो क्लासेस, एंड देन आई रियलाइज कि लाइक दे आर दीपक सर एंड सचिन सर। एंड देन आई रियलाइज कि अगर ये बंदे सी, मैं कोई मार्केटिंग पे नहीं किया, बिकॉज वो उनका नया नया कोचिंग था, ठीक है, वो मुझे पता ही नहीं था उनके बारे में, और उनका नया नया कोचिंग था, उन्होंने मार्केटिंग भी नहीं की थी। लेकिन मैं ग्रुप पे देख रहा हूँ टेलीग्राम पे ना कि दे आर वेरी एक्टिव, और मैं उनका नॉलेज देख रहा हूँ। तो आई रियलाइज यार इनको नॉलेज अच्छा है, इनको पता है चीजों के बारे में, लेट्स गिव देम अ चांस, लेट लेट देम गाइड मी फॉर प्रिपरेशन। So I took admission in their coaching, and honestly, like that was one of the best decisions of my life. All right. The thing is, पहले मैंने सोचा था कि जो मुझे आता है वो मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं है, जो नहीं आता है वही पढ़ता हूँ, जो आता है वो तो आता है। But when I started studying from them, I ended up studying everything from them. क्योंकि इतना content था उनका। तो like I'm not being biased, and if I am asked कि भाई कौन सी कोचिंग बढ़िया है, तो like I can vouch for two, Go classes and Vision Gate, because I've also seen people from Vision Gate as well, my batchmates. So that is also good coaching, and Go classes तो बढ़िया है ही। And टेस्ट सीरीज थे, उनके टेस्ट सीरीज थे, डिफिकल्ट थे, but यार we can't expect it to be a semester or board का exam. Difficulty is expected in a nation-wise exam. If it is not difficult, then it is disappointing. Disappointing, true. So test series भी difficulty, but that prepared well. That prepared me well. That practice उनके टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस, उनके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस, उनके क्लासेस में प्रैक्टिस। द कंटेंट वाज लेंदी, बट द कंटेंट वाज सो गुड कि एग्जांपल लेट मी द ट्यूरिंग मशीन। तो टीओसी करके एक सब्जेक्ट है ये भी इन कंप्यूटर साइंस, Theory of computation. देयर इज अ चैप्टर ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन 4 से 8 घंटा पढ़ाया भाई ने। अब इतना डेप्थ में पढ़ा दिया तो लोग बोलते इतनी जरूरत क्या है गेट में? अरे गेट के अलावा भी दुनिया है। When I went to my masters at IIT Kharagpur, there was a subject known as Foundation of Computing Science. It was so tough that everyone used to score the lowest marks, but I scored the highest. क्योंकि मेरा उसमें फाउंडेशन, उसमें टीओसी पूछते थे, उसमें डिस्क्रीट मैथ्स पूछते थे, एंड मेरा इतना अच्छा था वो सब्जेक्ट कि आई यूज्ड टू स्कोर वेल। So if you study in depth, that will help you in GATE and after GATE too. IIT में भी पहला 1-2 सेमेस्टर उसी का कंटिन्यूएशन है। तो दैट्स व्हाई आई टेल कि भाई ठीक है, इट वाज बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। क्योंकि जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स हो गया, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, जैसे टीओसी हो गया, एल्गोरिथम्स हो गया, these things which I studied from them, GATE में तो हेल्प किया ही, but that also helped me after GATE in my masters as well. So that was that's how I prepared. Then in my second year of my job, when I was preparing for my attempt for which I got admission, my job became a bit hectic, but I used to manage some time. Like I used to, after my job, I used to study from 10 to 3 or from 9 to 3. Like at night, I used to study at 3 till like 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे तक I used to study. एंड आई हैव अ हैबिट कि आई मेक नोट्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोफेसर्स को डंप कर देता हूँ क्वेश्चंस। परेशान होंगे तो होंगे, आंसर देंगे तो देंगे, ट्राई करने में क्या जाता है।
शॉर्डिंजर की कैट है भाई, जब तक बॉक्स नहीं खोलेगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो आई यूज्ड टू कि भाई सर ये क्वेश्चन गलत है, सर ये क्वेश्चन गलत है, सर सर इसका ये कैसे आया, सर उसका कैसे आया। द मैटर ऑफ फैक्ट कि दीपक सर ने और सचिन सर ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो आई यूज्ड तो समझ गया कि he doesn't get time and he studies at night. So they used to help me and solve my doubts at night. So a very big thank you to them. So this is how I prepared. And okay, revision. I will tell you one thing. What do you mean by revision? Learning the same thing again and again or memorizing the same thing again and again? For me, the best way to do revision is to start solving questions. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना यू विल रियलाइज कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। जो आपको आ रहा है ऑलरेडी उसको ऊपर से पढ़ लो, लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है स्टडी दैट वेरी वेल, वो आपके अंडरस्टैंडिंग में इशू है। सो फॉर मी रिवीजन वाज सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक बार ऊपर से देख लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो व्हाट आई डिसाइडेड, गेट के पहले माय फाइनल रिवीजन वुड बी स्टडीइंग टॉपिक्स like gate के पहले my final revision would be solving all PYQs from 1980 to now and seeing कि मेरा कहाँ चूक रहा है और वो मैं वापस पढ़ लूंगा। तो for me this was the revision strategy because there is a thing बोलते हैं कि एक कहावत है कि if you tell me I will forget, if you teach me I will remember, but if I if I will do it I will never forget it, ऐसे करके कुछ एक कहावत है। तो that actually happens if you use something, if you solve problems, so you will never forget that thing. So practice is one of the biggest like solving questions and practicing is actually one of the biggest form of revisions. मैं तो बोलता हूँ कि mock test ही दे दो, देखो ना कितना है। The biggest mistake aspirants do that they don't वो बैठे रहते हैं कि they are like कि जिस दिन मेरा सारा सब्जेक्ट हो जाएगा पढ़ के उस दिन तेरा भाई पेपर देगा, ठीक है? नहीं होगा कभी कभी। दिसंबर चला जाएगा, जनवरी चला जाएगा, आपका पहला मॉक टेस्ट गेट होगा, ठीक है? मत बैठो, स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट, स्टार्ट गिविंग टेस्ट, देखो क्या होता है। जो नहीं भी पढ़ रहे बीटेक में तो पढ़ा है ना, देखो कितना आ रहा है तुम्हें। स्टार्ट गिविंग टेस्ट, टेस्ट देने से ही तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारा कैसे चल रहा है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। राइट, ऑलराइट, परफेक्ट। सो I hope this preparation strategy would help a lot of students who are currently viewing this or who will watch this in near future. Yeah, so now the major chunk of the podcast is being done. So now we will go for a rapid fire round kind of questions in which I will be asking questions and Bhaiya will answer that in very precise and very interesting way. All right, so the first question of this rapid fire round is that what was your expectation and emotions over your rank 52? Okay, expectation and emotions over rank 52. Yeah. So first of all, let me tell that result pe na, it was expected. When I was sitting in the examination hall at that time, when जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, आफ्टर नियरली 1 hour मेरे हार्ट ने बोल दिया हो गया भाई। अच्छा, ओके, ग्रेट, हो गया ये, you have made it एंड बस जैसे कर रहे वैसे करो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन डू इट। पेपर करके बाहर आने के बाद आई सेड इट टू माय फ्रेंड, यार मेरे को लग रहा है अच्छी रैंक आ जाएगी, शायद अंडर 100 आ जाएगी, पेपर बहुत अच्छा है। ऑलराइट, एक आपको हिंट लग जाता है क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कुछ आंसर है, वो ऑप्शन में था, राइट, दैट वाज करेक्ट। तो एक आपको हिंट लग जाता है। तो रिजल्ट में यार वो शॉकिंग एक्सपेक्टेशन, हाँ वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, 50 का 30 और या 50 का 100 होता है, बट यू नो ना कि ब्रॉडर रेंज में होने ही वाला है आपका। ऑलराइट, so alright, so next question is that what is the admission process for IITs, top IITs, and why did you choose IIT KGP? Because you know, there's general perception that at AI 52 you could easily get IIT Bombay, right? So why IIT KGP over IIT Bombay or even ISC? Yeah, okay, so ISC, first of all, like ISC is a very good institute, not gonna lie. I have huge respect for ISC, but I was always drawn towards IITs.
All right. and somehow मुझे किसी ने बोल दिया था कि IITs are very tough and IITs are not that tough, but that guy was very wrong. IITs are also tough. Yeah, of Every course. Of institute is course. tough. You आप वहाँ relative grading होती है and you are sitting with one of the best minds of the country, तो वहाँ पढ़ाई tough ही होगी and Of course. nothing is cakewalk. Hmm. Okay, so after GATE direct admissions नहीं होते हैं. कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, कुछ कॉलेजेस में इंटरव्यू के थ्रू होते हैं. So there were interviews. I was selected in IIT Delhi, IIT Bombay, and IIT Kharagpur, and many IITs. You can see my LinkedIn. So the thing was, why I chose IIT Kharagpur first. Like मुझे AI में जाना था, but अभी तक मैंने कदम नहीं रखा था. तो to directly jump into an AI course and then if I realize कि यार ये तो नहीं हो रहा है, then I need to drop. तो आई वॉज वेरी गुड इन सी एस, तो आई वॉज लाइक ठीक है CS करते हैं, CS में आई विल स्टडी AI के सब्जेक्ट. इलेक्टिव्स भारी भारी ले लेंगे, बहुत सारे ले लेंगे, देन अच्छा हुआ तो उसमें पाथ बनाएंगे, वरना SD की तरफ चले जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वाज CSE. माय चॉइस वाज CSE and second choice was 2 years का कोर्स. एंड ऑल्सो लाइक आई वाज कि यार ठीक है, कौन से IIT में AI पे बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड ऑल. तो लाइक दिल्ली भी है, वो भी है, लेकिन दिल्ली में लाइक द थिंग इज इट्स एक स्पेसिफिक AI का ही कोर्स है. आई वांटेड CSE, तो इसके लिए आई चोज IIT खड़गपुर क्योंकि वो 2 ईयर का कोर्स था एंड IIT खड़गपुर में बहुत ज्यादा इलेक्टिव्स थे, तो दे गेव मी एन ऑप्शन टू स्विच. अगर मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पूल चूज कर लिया, CS पूल चूज कर लिया, तो सॉरी AI पूल चूज कर लिया तो मैं चेंज नहीं कर सकता. सेकंड सेम में तुम कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी. हाँ, तो जिन्होंने AI लिया था एंड देन दे रियलाइज कि यार AI नहीं हो रहा है, तो देन दे स्विच बैक टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. All right, so the next question is that how was your life at IIT as an MTech student? Like how much you enjoyed, how much you loved the 2 year? So life at IITs is like a dream. It is chaos, it is peace, it is a hell a lot of learning, it is hell a lot of competition. बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, एग्जाम्स भी टफ होते हैं, लेकिन मजा आता है. यू लर्न समथिंग. फेस्ट होते हैं, यू एंजॉय देम. Each and every day you get very tired, but when you return to your hostel and you see the main building, it's worth it. Yeah, right. It's worth it. Placement session, they are very 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 hectic. बहुत pressure होता है, बहुत stress होता है. Then comes the day 1 of placement, day 2 placement. But then you get placed. Then you call at your home to your parents like, okay, Papa, I got placed. Like these things are worth it. मेहनत भी है और मेहनत है, हार्ड वर्क है एंड कंसिस्टेंसी चाहिए. स्लीपलेस नाइट्स होती हैं. I made very good friends at IIT. So it was a kind of dream. I have an album in my phone known as Dream Come True. तो उसमें सारे फोटोज है फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक बर्थडे पार्टी से लेकर प्लेसमेंट, जो सिलेक्शन होने के बाद आई मेड फर्स्ट वीडियो कॉल टू माय पेरेंट्स, वो भी है. दोस्तों के साथ बकचोदी कर रहा था, वो भी है. दोस्तों का प्लेसमेंट हुआ तो वो उनके भी फोटोज लेके रखे हैं. तो these things they teach you, they shape you. आपको पता है गेट निकालना इज नॉट डेस्टिनेशन. मुझे दीपक सर ने एक बात बोली थी कि आप वहां जा रहे हो ना, तो आप अपने एरिया में तोपो. वहां सब IITian है, वहां सब कोई ना कोई एग्जाम निकाल के हैं. कोई तो उससे भी ऊपर है, किसी का पेपर है, कोई ऑलरेडी बहुत साल एक्सपीरियंस है. कैसे आप खुद को डिफरेंशिएट करोगे? लर्न. आप वहां जाते हो उस प्रेशर में, उस दबाव में, जब आप पढ़ते हो, वो कहते हैं ना कि तब के हीरा निकलता है. तो आप वहां के प्रेशर में जब आप पढ़ते हो, तो आप जब आप IIT में घुसते हो और जब IIT से बाहर आते हो, तो दैट मेक्स यू समथिंग डिफरेंट. You don't become an IITian when you enter the institute. You become an IITian when you get out of the institute and you do well and you study hard and you grow. आपको खुद समझेगा कि यार फर्क है. When I got in and when I got out of this campus, that the person who entered and the person who went back home, they are very different people. Right. It shapes you a lot. Yes, it definitely shapes me a lot. Anyone, it shapes anyone a lot. Also, apart from academics, it teaches you. Hostel life teaches you a lot. Hostel life teaches you a lot. So like the only thing is like कि now I think यार 1-2 साल अगर और कैंपस में हो जाते हैं, अगर ये कोर्स 3 या 4, अब now I think कि 2 साल का नहीं 3 या 4 साल का कोर्स होता, तो that would have been better. क्योंकि आप वहाँ पर ज्यादा बहुत कुछ सीखते हो. Right.
All right, so since your life at IIT was definitely very like full of thrill and excitement and a hell lot learnings. So coming to the main point, that what was and how was your placements at, like, from IIT Kharagpur, because of course IITs are known for their placements Mhm. in the country. So how was it in your case? So the thing is, नॉर्मल कॉलेजेस में यार प्लेसमेंट्स चालू हो जाते हैं जून जुलाई से, एंड वो चलते हैं पूरे साल. आईआईटीज में ऐसा नहीं होता, टॉप 7 आईआईटीज में ऐसा नहीं होता. देयर प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं कि आपके रिटन टेस्ट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, बट सेमेस्टर में कोई कंपनी सिलेक्शन नहीं करती है, इंटरव्यू नहीं लेती. आपके टेस्ट होंगे, बूम कम्स 1 ऑफ दिसंबर इज नोन एज द डे 1 ऑफ Okay. प्लेसमेंट्स. आपके टेस्ट होते रहेंगे लेकिन सिलेक्शन चालू होंगे 1 दिसंबर से. 1 दिसंबर से इंटरव्यू होंगे, वो इंटरव्यू रात को चालू हो जाते हैं. 3 बजे पीपल आपको लोग जाते हुए दिखेंगे फॉर इंटरव्यूज. डे 1 से डे 14, दिस इज ओनली फेज 1 ऑफ प्लेसमेंट एट आईआईटी, एट टॉप 7 आईआईटी. सिर्फ 14 दिन. और जो पहले 3 दिन तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है. रात को आपको लोग जाते हुए दिखेंगे, फोन आ जाएगा आपका इंटरव्यू, आप साइकिल लेके जा रहे हो, ठंडी में आप साइकिल लेके जा रहे हो 3 किलोमीटर चलाते हुए, एंड देन क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है यार, 22 एकड़ का कैंपस है, तब आप जा रहे हो साइकिल चलाते हुए, एंड यू गो टू द इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यू देते हो. द थिंग इज, जैसे ही डे 1 आता है ना, फट के 4 हो जाती है. ठीक है, एंड इट इज बहुत डर भी लगता है कि यार क्या होगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं. फिर आप सबको देखते हो, फिर आप सबको देखते हो, आप तो सब आपको हौसला देते हैं. जो आपने प्रिपरेशन की है वो सब आपको लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं. राइट. देन कम्स डे 1 और इंटरव्यूज चालू होते हैं, आप भाग भाग के इंटरव्यूज देते हो. एंड I got selected on day 1 only. I sat for the very first company and I got selected. तो उसमें लाइक एक बहुत डर लगता है, आपके फ्रेंड्स रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड देन आप जा रहे हो, एंड देन आप बोल के जा रहे हो. आपके फ्रेंड्स खुद रिजेक्ट हुए, लेकिन वो आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि यार मेरा नहीं होगा, वो तुमको बोल रहे हैं सौरभ सिलेक्ट होके आना, अपने ग्रुप का आधा तेरे को खोलना है. मतलब दैट, मतलब एक फ्रेंड्स का एक सपोर्ट होता है कि ठीक है होगा. पेरेंट बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा तुम करो करो, कोई प्रेशर मत लो. एंड देन यू गो टू इंटरव्यू, यू गेट सिलेक्टेड. आप दूसरे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब से आपको कॉल आ जाती है कि सौरभ मिश्रा यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस रोल. तो लाइक इट इट फील्स गुड. लाइक प्लेसमेंट्स आर वेरी हेक्टिक. अभी मेरे जूनियर्स प्लेसमेंट बैठ रहे हैं. प्लेसमेंट्स आर वेरी हेक्टिक, स्पेशली फेज 1, क्योंकि वो 14 दिन ही होते हैं. फेज 2 इज लाइक नॉर्मल, जनवरी से चालू होगा एंड इट गोस टिल मई, अप्रैल में बस. वो नॉर्मल होता है, कंपनी आई इंटरव्यू लेगी एंड एवरीथिंग, वो नॉर्मल टाइप ही होता है. फेज 1 में कैसा होता है, 1 से 14 दिसंबर तक ये प्लेसमेंट होता है. तो इट इज हेक्टिक बट इट फाइनली गिव्स पीस. आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ तो आप लेके जाओगे. सबका ही ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाता है. राइट. तो 3 बज जाते हैं, बट एवरीवन जनरली गेट्स प्लेस्ड. ओके, परफेक्ट. लोगों के बैरियर्स रहते हैं कि यार मेरे को इतना ही चाहिए. वो बैरियर, अगर वो बैरियर आपका हाई नहीं है तो यू विल गेट प्लेस्ड. ऐसा भी नहीं कि आप 40 लाख बैरियर रखो, आप थोड़ा नीचे भी करो, 20 वाले को भी अपॉर्चुनिटी दो. You like everyone from my batch got placed. कुछ 2 या 3 बचे हैं, उनका भी आई थिंक ऑफ कैंपस हो गया है. तो इट वाज गुड, इट वाज हेक्टिक, बट फ्रेंड्स रहते हैं, सब सपोर्टिव रहते हैं, प्रोफेसर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं. दे वोंट गिव यू मच प्रेशर इन एकेडमिक्स फॉर सीएसई. आई एम टॉकिंग अबाउट सीएसई डिपार्टमेंट. एंड व्हेन यू गेट प्लेस्ड, लाइक एवरीवन इज हैप्पी, सो यू विल गेट प्लेस्ड. वो वर्थ इट होता है. Amazing. All right, so now there's this one new branch in GATE examination that is called DA, like DA and AI bolte hai, data science and artificial intelligence. So like what is your opinion about that, because this is very new branch, तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, but they are kind of scared that should I go for GATE DA or should I go for GATE CSE, you know, because CSE बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत क्लासिक ब्रांच है एमटेक का. DA अभी नया ब्रांच है, तो they are like little scared. This question is DA versus CS, so let me answer it very well. Right. My suggestion would be, देखो पेपर दोनों का टफ है, कंपटीशन दोनों में है, बट अपॉर्चुनिटी वाइज CSE इज बेटर देन DA, बिकॉज CSE में सीट ज्यादा है
DA people cannot apply, like apart from IIT Kanpur CSE and apart from IIT Dhanbad CSE, I don't think they can generally apply to CSE. DA people cannot apply to CSE seat, but CSE people can apply to DA seat. एंड तो ये हो जाता है, तो कंपटीशन डीए में कम, मतलब सीट्स को लेके टू गेट एडमिशन इन डीए, लाइक अगर आपको डीए से एडमिशन चाहिए तो कंपटीशन इज वेरी हाई. तो डीए में एक तो सीट कम है, नॉट एवरी कॉलेज हैज सीट्स एआई की, डेटा साइंस की, और जिनके पास है भी वो सीएससी को भी अलाउ करते हैं. आधी सीट तो आपकी वो ले गए. सेकंड पीएसयूज सीएस से काफी ज्यादा है, डीए में बहुत कम है. वन ऑफ द पीएसयूज इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट व्हिच कम्स वाया गेट, दैट इज रॉ, बेसिकली रॉ हायर्स वाया गेट फॉर डीए, बट देयर आर ओनली 10 सीट्स. तो डीए में सीट्स बहुत कम है. आपको लगेगा डीए इज लाइक क्या हो गया, इक्वल है, लेकिन सीट्स बहुत कम है. अभी ऐसे रॉ ही एक ही पीएसयू है, लेकिन उसमें सिर्फ 10 सीट है, तो सीट भी कम है एंड कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. तो अपॉर्चुनिटी वाइज यू कैन गो फॉर सीएससी, बट अगर आप कोई ऐसे बैकग्राउंड से, जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से हैं, प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट डीए. बट व्हाट आई थिंक प्रिपरेशन फॉर सीएस आल्सो हेल्प यू इन प्लेसमेंट. आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, एसडी के भी और एआई के भी ऑप्शन होते हैं, राइट के भी होते हैं. तो सीएससी से overall CSE is good in terms of opportunity and everything. Perfect. Okay, so the next question is, what is the impact of gap years in your admission process or in your placement journey at IIT? Like, gap year depends. Be it in 11 after 12th, like for the JEE, or be it even after GATE, like if you have. Let me get it very close, very clear to you. Let's divide it into 3 parts. Gap years after 12th. Gap years after BTech and gap years after MTech. फर्स्ट ऑफ ऑल एमटेक के बाद आपका गैप ईयर है तो मतलब आपकी प्लेसमेंट ही नहीं है. अगर आप फाइनल डिग्री के बाद आपके पास गैप है और आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है जितना ज्यादा गैप होता है. ट्वेल्थ के बाद 1-2 साल गैप इज नॉट एन इशू, क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह पे पहुंच गए हो, तो वो आपका वर्क डिफाइन नहीं कर रहा है. आपने 2 साल का गैप लिया है ट्वेल्थ के बाद, लेकिन यू हैव रीच्ड टू अ गुड इंस्टीट्यूट, तो वो उतना ज्यादा फर्क नहीं करता है. एंड व्हाट इफ समबडी डज नॉट, लाइक समबडी कुड नॉट मेक इट टू big institute even after taking 2 drop? But you have done masters, bachelor's हो गया, masters हो गया, तो जनरली 12th का ड्रॉप उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है. ऑलराइट, ठीक. 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सम कंपनीज एक्सप्लिसिटली आस्क फॉर इट कि यार 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. 1 साल या 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. बैचलर्स के बाद इट मेक्स थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. इफ अगर आपने गैप लिया है बैचलर्स के बाद, तो आपके मास्टर्स के सिलेक्शन में भी, गेट में तो नहीं होता ऐसा, लेकिन आपके एमबीए में आपके मास्टर्स के सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका गैप है तो. बट अगर आप एमटेक कर रहे हैं और आपके बीटेक के बाद 2 साल का गैप है, तो अगर आप ऑलरेडी एमटेक आईआईटी से कर रहे हैं तो उतने बड़े इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आपके बीटेक के गैप का ज्यादा वैल्यू नहीं रहा. आप बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं पहुंच गए हैं तो जस्ट कितना ही आपकी बीटेक के बाद आप एमटेक तो कर रहे हैं ना. एमटेक में तो करंटली यू डोंट हैव एनी बैकलॉग और एनीथिंग, तो आपको चांस मिलेगा. बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 1-2 साल इज फाइन. सो आपकी वर्क, आप ऐसे स्किल डेवलप कीजिए कि वो ओवरशैडो हो जाए. व्हाट मैटर्स इज बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए. करंट डिग्री में पास में हो तो कुछ देखो, कंपनीज करती है फिल्टर, कंपनीज हर चीज पे फिल्टर करती है, आपके 10th के परसेंटेज पे भी करती है, लेकिन दे आर वेरी लेस. बैकलॉग वर्कलॉग पे भी करती है. व्हाट मैटर्स, सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि करंट डिग्री के बाद कितना गैप. प्रीवियस में कितना था कितनी करेंगे, ज्यादा 5-10 कंपनियां इफेक्ट करेंगी. वर्ल्ड इज वेरी बिग and there is a good market out there for engineers. Even if you go to IIT or if you don't go to IIT, some or the other company will, if you have skills, they will value you and they will give you a job. अगर आपके पास skills है, if you can get things done, you will get placed. और IIT से भी आपके पॉलिसी भी आपको ज्यादा का पैकेज नहीं लगता है. Try to learn and switch. So it doesn't, past की मिस्टेक ज्यादा, okay. The good thing about GATE is आपका पास मैटर नहीं करता है. तो आप कैसे भी आप परफॉर्म करते हो पास में, doesn't matter. All right, perfect.
So the next important question is that what should be the ideal time, or is there any ideal time for No, the preparation of there is GATE to no get idea. good rank? No ideal time. Turing machine पड़ी है, that Turing machine पड़ी है, like it can never halt too. Hmm. आप आपके हिसाब से प्रिपरेशन का डेफिनेशन क्या? आप बुक लेके बैठे रहेंगे तो आपका कभी भी नहीं होगा ना. Hmm. तो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी. अभी जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मैंने उतना प्रिपेयर नहीं किया, Hmm. तो मैं बोल दूंगा कि यार मैंने तो यार 3 महीने में गेट का एग्जाम क्लियर कर दिया. नहीं भाई, 4 साल बीटेक में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी. पढ़ाई की थी, राइट. उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि 3 महीने आए, मैंने जम के रिवीजन, जम के प्रॉब्लम सॉल्विंग की और पुराने नॉलेज में मेरी हेल्प कर दी. जो जो कहते हैं आई प्रिपेयर फॉर 1 मंथ, आई प्रिपेयर फॉर 30 सेकेंड्स, आई प्रिपेयर फॉर 6 मंथ्स, नहीं होता भाई. तुमने बीटेक में पढ़ा हुआ है. तो आइडियल शुड बी कि 1-1.5 साल लगना चाहिए. ऑल राइट. उससे ज्यादा भी लग सकता है. if you're starting from scratch, if you're starting from scratch, it should take you 1.5 years. थोड़ा अगर आप, और हर इंसान की सिचुएशन पे होता है यार. देखो, कोई जॉब करता है, कोई जॉब नहीं करता है, आपने ड्रॉप लिया है या नहीं, तो और आप कभी बीमार पड़ गए तो 1-1.5 साल है और प्रैक्टिस पे भी. बाकी डोंट लिसन टू एनीवन जो कहते हैं 6 महीने में 15 सेकंड में एक हार्ड पेपर, एंड ऑल दिस फिलोसोफर विल गेट टू लाइक सब फॉल प्रूफ हो जाएंगे. तो इट डिपेंड्स यू कि आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हो, एंड इट इज सब्जेक्टिव, देयर इज नो फिक्स टाइम. ठीक है, परफेक्ट. ओके, वन मोर क्वेश्चन, that what is the like what would you like to tell to a non CS background students who are willing to appear for GATE Computer Science? Appear for it, prepare for it, and if you crack it, doesn't matter if you are from CS. देख, कुछ कॉलेज आपको एमटेक के लिए अलाउड नहीं करेंगे, केजीपी अलाउड नहीं करेगा अगर आप मैकेनिकल सबसे हो तो सीएस के लिए, बट अदर आईआईटीज विल अलाउ. एंड वंस यू क्लियर गेट सीएससी, you are clearing gate computer science, clearing gate data analytics and AI, clearing gate mechanical. गेट का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. बेसिकली आप ग्रेजुएट लेवल पे यू आर क्वालिफाइड. सो वंस यू क्लियर दिस एग्जाम, यू आर एज क्वालिफाइड एज एनी सीएससी ग्रेजुएट. राइट, अग्रीड. हाँ, डिग्री नहीं है आपके पास लेकिन यू आर क्वालिफाइड. तो अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप जाके फेल ही हो जाओगे. इफ यू कैन क्लियर गेट, वहां जाके आप सर्वाइव करोगे. हाँ, एलिजिबिलिटी में डिग्री मांगेंगे तो यू कैन नॉट मेंशन मैंने गेट क्वालिफाई. डिग्री तो सीएससी की चले लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ लेस हो, आप कुछ कम हो. आप उस आईआईटी में उस प्रेशर में सीएससी वालों के साथ भी परफॉर्म कर पाओगे. ऑलराइट, परफेक्ट. एग्जाम क्लियर है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट. एक र्यूमर फैलता है कि बीटेक और एमटेक के बीच में कंपटीशन की एमटेक वालों की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है. बीटेक वाले लाइक पता नहीं चाइल्डिश है या फिर पता नहीं क्या है. तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ द एमटेक बैच फ्रॉम आईआईटी केजीपी. There is no difference between BTech, MTech, PhD in an IIT. And हमारी तो क्लासेस भी साथ होती थी. जैसे जो हमने इलेक्टिव्स, मैंने बोला कि MTech हेवीली इलेक्टिव डोमिनेटेड है हमारे IIT खड़गपुर में, तो हमारी क्लासेस भी साथ में होती थी. हम वो सारी कंपनी में जहाँ बीटेक, जहाँ एमटेक एलिजिबल है वहाँ बीटेक भी एलिजिबल था. हम बहुत सारे कंपनीज में एक साथ भी बैठे हैं. हाँ, दे आर इन दैट इकोसिस्टम फ्रॉम 3 आपके आने तक. दे आर रेडीली 2 years already in that ecosystem, so they know much more about the system. Okay, so that makes things easier for them. They are well connected with their alumni and within themselves. So they are well connected. So once MTech people enter the campus, it may be a bit difficult for them to first understand कि कैसी चीजें जा रही है. But once you are part of the system, you also keep going. बाकी academics में if you are scoring in a subject, उसमें बीटेक वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं. If you are getting placement, तो उसमें बीटेक वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं. तो it is equal. IITs में अलग से नहीं है कि पोस्ट, अपार्ट फ्रॉम IIT मद्रास उसमें अलग प्लेसमेंट सेल है. बाकी हर जगह प्लेसमेंट सेल भी सिमिलर है. बाकी एक क्या होता है कि कुछ इमेच्योर होते हैं, दे कंपेयर. Even for PG people also, PhD people I have found most of them as sane mentally. But like क्या होता है कि जैसे बीटेक वाले कम उम्र के होते हैं, they are immature. वो आपसे छोटे हैं. कुछ एमटेक भी immature होते हैं.
So there is generally teasing and comparison going on, but वो immaturity और है तो हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हम सब बच्चे ही, ठीक है, बट ये फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी टीजिंग होगी, थोड़े एक दूसरे के साथ प्रैंक्स होंगे, बिकॉज एवरीवन इज अ चाइल्ड, और आपको उनकी गलतियां भूल जानी चाहिए बिकॉज वो आपसे छोटे उम्र में, ठीक है, तो फॉरगेट देम, फॉरगिव देम, एंड बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है. All right, perfect. So with this question, we would like to conclude this podcast. It was actually very informative and very interesting. I personally loved the opinion that भैया put forward, and I really hope कि जो उन्होंने ये देखा है, I am hoping कि आपकी बहुत हेल्प करेगी. And of course, अगर आपने पूरी देखी है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो definitely you will feel that okay, you are taking so much from this podcast that will definitely help you in your career. And if you are preparing for a GATE, then surely I think you should follow his guidance, or you should follow his tips that he has given, because of course he is the AI 52, which is a big deal for sure. So thank you so much for being here, and have a great day. And put your opinions in your comment in the comment box if you want to say something, if you want to ask any questions, and Bhaiya will reply you there. So thank you so much and have a great day. We can get connected over LinkedIn. And yes, and I will put his LinkedIn in the description box, so you can just. I may be not able to answer every question, but I will try to answer. Sure. Yeah. So thank you so much. Have a great day. See you. Bye.